guys, today we are going to meet this amazing personality who has learned a lot in his life and has exceptional stories of success and struggles. I am talking about Mr. Suresh Mancharmani, founder of Tajurba, two-time TEDx speaker, motivational speaker and Gallup certified strength and business coach. Although he has never shied away from discussing his stories in front of the camera, we feel that certain aspects of the story gets missed on the way. So today we are going to be discussing all those aspects and try to understand him a bit more. Hi friends, my name is Suresh Mancharmani. I am co-founder and chief visionary officer of Tajurba, two-time TEDx speaker, author of 3 books, presidential awardee and a serial entrepreneur with 42 years of experience. Currently, I am a certified Gallup strength and business coach, helping entrepreneurs to grow their business and profits exponentially and achieving company valuations over 1,000 crore plus. I had a very amazing journey. I was born in a refugee camp in Ulhasnagar, camp number 4. My parents migrated from Sindh, Pakistan those days, and I was the youngest in the family. Small barrack, 120 square feet, no toilets. These days we take toilets for granted. Everyone needs a attached bathroom and a separate bathroom for the guests, but we had no toilets. Very, very dirty, unhygienic toilets, 500 meters away from home. That's the childhood. My schooling was mostly in government Sindhi schools, and I was labelled as a dumb student. One of my teachers told me, "You are the worst student I ever had in my classroom last many years." No English was taught, so a huge complex of English throughout my life. I live with that. My college, complete school education was Hindi. And most of the time, those days, teachers used to beat a student, and I was like their scapegoat, so mercilessly beaten by the teachers most of the time. And my first job was at the age of 21. Before that, I wanted to be an actor. I was doing Sindhi, Hindi, and Punjabi theatre. My dad was very encouraging. He was like filling up all the applications and everything for Pune Institute for Acting, where all the Amitabh Bachchan, Danny, Jayawardene went. And I was about to do things for plays. I was in second year, and my dad passed away suddenly, and the family needed the money. So I took up a job with a soap manufacturing company that was a washing soap called Bobby's Soap. So those days, very famous ad which made that soap very popular was Sun Meriye Billo Bobby 5 rupees kilo. So I was a salesman there getting 300 rupees. But I failed miserably at selling. I was not good at selling that time, very shy as it is. So, but I changed my college from morning to evening. I was working whole day. And then I took up a job with a garment exporter. And that was a turning point for my life, because I saw people were becoming very rich in 3-4 years, because that was a sunshine industry those days. Europeans, Americans were coming to India buying like crazy for $2, $3 from Jaipur or Janpath, and selling for $20, $30, $50 in America. So exporters were becoming rich, the importers were becoming rich, and that encouraged me. I worked for an exporter 2 years, and that was the only job I ever did in my entire life. वो मेरी एक ही और आखिरी नौकरी थी जिंदगी में जो मैंने की. मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ करना है तो अपना ही करना है, अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छे पैसे बनाने हैं. माई ओनली मोटिवेशन वाज मनी. आज जो बोलते हैं डू व्हाट यू लव, ये स्टेटमेंट हमको आती नहीं थी. तो हमको यही आता था कि पैसा कमाना चाहिए, अपना धंधा करना चाहिए. स्टार्टअप वर्ड डिडंट एग्जिस्ट, अपना बिजनेस होना चाहिए. सो एक अपना जल्दी से कर लिया जॉब वर्क फॉर एक्सपोर्टर. एंड ए लॉन्ग जर्नी ऑफ स्ट्रगल व्हेन यू हैव नो मेंटर, नो कैपिटल, कुछ है नहीं पास में. डीटीसी बस में चलते थे, पुलिस के डंडे भी खाते थे, बस में लटकते भी थे. एक बार एक्चुअली मुझे एक पुलिस वाले ने कुछ डंडे मारे थे. मैं बस में लटका हुआ था, पाँव जमाने की कोशिश कर रहा था, ओवर क्राउडेड बस. तो 5-6 डंडे पड़े मुझे. मैंने घर आके कहा, यार ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है. ज़िंदगी में इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि एक बाइक भी नहीं हो. सो दैट डे आई डिसाइडेड कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है. तो बहुत मेहनत की. जब आपके पास मेंटर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है, सिर्फ अपना एक पागलपन है, एक अपना पैशन है, एक अपनी मेहनत है. वो बहुत की. 7-8 साल का अच्छा स्ट्रगल चला. फिर शादी भी हो गई 1983 में. 78 में मैंने अपना किया था. 83 में शादी हो गई, और 3 साल का स्ट्रगल मेरी वाइफ ने साथ में बहुत मेहनत की. एंड वी आर मैरिड फॉर 37 ईयर्स. एक्चुअली 28 अक्टूबर को हमने 37 ईयर सेलिब्रेट किया मैरिज के.
तो वर्क वेरी हार्ड एंड 86 में मैंने पहला यूएस ट्रिप लिया। उसके बाद से ज़िंदगी बदल गई, फिर मुड़ के देखना नहीं पड़ा। 95 तक हम इंडिया के एक जाने माने एक्सपोर्टर बन गए और हमने सोचा कि अभी कंपनी को लिस्ट करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एक अच्छा सा छोटा सा आईपीओ प्लान किया 1.25 करोड़ का, जो 300 टाइम ओवर चला गया। 300 करोड़ रुपए पब्लिक ने हमको दिए, क्योंकि हेडलाइन थी अखबारों में प्रीमियम इशू एट पार, और बड़ा अच्छा सा पब्लिक इशू रहा। हेडलाइन था टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, एंड देन फॉलोड बाय प्रेसिडेंशियल अवार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। दैट पिक्चर इज स्टिल इन देयर इन माय ऑफिस वॉल। तो प्रेसिडेंट का एक अवार्ड भी मिला। दैट वाज अ ग्रेट टाइम आई हैड, एंड that time was the golden period of my life. But 2001, suddenly that 9/11 happened and lot of things happened, and बहुत सारे हमारे बड़े 2 मेजर कस्टमर बैंकक्रप्ट हो गए, और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। अगर रुपए की टर्म में बात करूं तो 22 करोड़ का नुकसान हुआ, और हम घबरा से गए, क्योंकि कोच और मेंटर उन दिनों होते नहीं थे। इट वॉज नॉट पॉपुलर कि बिजनेस कोच भी होता है। स्पोर्ट्समैन के लिए कोचेज होते थे, हम लोगों के लिए कोचेज नहीं थे। तो वहाँ से घबरा के जल्दी से हमने फटाफट अपना फैक्ट्रीज बेची और लोगों को पैसे दिए जिनके देने थे, घर बंगला बेचा, बैंक को पैसे दिए, एक ज़िंदगी की दोबारा से शुरुआत की। और वो शुरुआत जो चली, तो वो एक स्ट्रगल अगले 10 साल फिर से लगे, क्योंकि हम थोड़े नेगेटिव हो गए उस बिजनेस के लिए। तो कुछ नया करना है, क्या करना है, और धीरे धीरे करके हमने बहुत कुछ चीज़ें ट्राई की। कुछ अच्छी चली, कुछ में फेलियर्स आए। रियल एस्टेट भी किया, और वेल्थ मैनेजमेंट भी की। मैंने 2005 में 2 साल पढ़ाई भी की, एक इवनिंग कॉलेज में जाकर वेल्थ मैनेजमेंट के लिए कंपनी शुरू की, वहाँ से अपने को फाउंडर, वो उसने अच्छा बिजनेस किया। अभी मैंने वो अपने पार्टनर को कंपनी भेज दी। तो मुझे 60 के बाद ऐसा लगा कि अब इतना तजुर्बा हो गया है, और ये अब किसके काम आने वाला है। मेरी तो ज़िंदगी अब अच्छी चल रही है, बच्चे भी बड़े हो गए, उनका ई कॉमर्स का अच्छा बिजनेस है। तो मुझे ऐसी एक फीलिंग आई कि मुझे शेयर करना चाहिए लोगों के साथ तजुर्बा। मुझे शौक तो स्टेज का था, तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की। काफ़ी सारे मुझे इनवाइट आने लग गए बोलने के लिए, कीनोट स्पीकर, बहुत सारे इवेंट्स पे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो फिर मैंने ये बुक भी लिखी, ऑन द स्टेज। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि बहुत फियर है स्टेज पे जाने का, तो उसको देख के मैंने ये किताब लिखी, ऑन द स्टेज, व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, ऑन दैट स्टेज। उसके ऊपर एक मैंने किताब लिखी, और लोगों को ट्रेन भी करना शुरू किया। स्टेज फियर हटाना है, टेड टॉक कैसे करना है, एक अच्छा हाई एनर्जी टॉक कैसे देना है। फिर मुझे लगा कि जो मेरा एक फेलियर था सेल्स में, मुझे हमेशा तंग करता था, और मैंने ज़िंदगी भर सीखा कि सेल्स कैसे, क्योंकि हर बिजनेस ओनर को, इवन आप जॉब में भी हैं, सेल्स एक ऐसी स्किल है हर एक को सीखनी चाहिए। तो वहाँ एक मुझे गैप लगता था कि लोगों को सेल्स स्किल नहीं आती, वो जॉब अच्छी नहीं ले सकते, उसकी सैलरी नहीं नेगोशिएट कर सकते। बिजनेस करते हैं तो सेल्स इज द ऑक्सीजन, अगर सेल्स नहीं है तो बिजनेस नहीं है। तो ये स्किल बहुत ज़रूरी है, और मैं बहुत भारी फेल हुआ था सेल्स में। तो मैंने सेल्स को सीखा, ट्रेनिंग ली, बड़े बड़े ट्रेनर से कोर्सेज किए, और उसमें सक्सेस हासिल की। तो मेरी दूसरी किताब आई, ऑन द स्टेज। और तीसरी किताब रिसेंटली मेरी जो आई है, वो है 20 kg वेट लॉस इन 90 days। तो ये भी एक अमेजिंग जर्नी हुई। मैं हमेशा ओवरवेट रहा, स्ट्रगल करता रहा, फेलियर होते रहे लाइफ में वेट के साथ हमेशा। फिर मैं डायबिटिक भी हो गया 2-3 साल पहले। मुझे डॉक्टर्स दवाई का डोज बढ़ाते गए, मुझे लगा ये तो एक दिन इंसुलिन इंजेक्शन में पहुंचा देंगे मुझे। तो मैंने फिर कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता हूँ। मैंने अफर्मेशंस करनी शुरू की कि माई आइडियल वेट इज 75 kg एंड आई एम परफेक्टली हेल्दी एंड आई एम गोइंग टू लिव 100+ ईयर्स। तो मैंने कुछ ज़िंदगी में ऐसे कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स अट्रैक्ट किए जिन्होंने मुझे गाइड किया। चेन्नई के एक कंसल्टेंट हैं। तो मुझे इस लॉकडाउन में एक अपॉर्चुनिटी मिली घर का खाना खाने की, घर पर रहने की। पार्टीज बंद हो गई, तो इस दौरान में मैंने 23 किलो वजन लूज किया। तो आज से अगर मार्च की बात करें तो मैं 105 किलो था, आज 82 kg हूँ। नो डायबिटीज, नो मेडिसिन इन माई लाइफ, हाई एनर्जी। एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन आई हैव ट्रेन ओवर 1000 पीपल अराउंड इंडिया। उनके लिए मैंने सेल्स ट्रेनिंग्स की है, बिजनेस ट्रेनिंग्स की है, और उसके पहले ऑन द स्टेज और पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर और 1000 लोगों के आसपास मैंने बिजनेस ट्रेनिंग की होगी। और 1-to-1 मैं कोचिंग, बिजनेस कोचिंग करता हूँ उन बिजनेस ओनर्स के लिए जिनका 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, और जो अपनी कंपनी के वैल्यूएशंस को 1000 करोड़ से ऊपर ले जाना चाहते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दिस इज लिटिल बिट अबाउट माय जर्नी सो फार इन ब्रीफ। थैंक यू। Okay guys, so after having this brief introduction of Mr. Suresh Mancharmani, let's have a fun
question and answer round with him. Tell me about something about your siblings, about your parents, and you know if you have any memories that you still remember and what made that really memorable. चाइल्डहुड मेमोरीज की एंजला बात करें तो 3-4 खास है। पहली तो रेफ्यूजी कैंप की, जहाँ पे कोई टॉयलेट्स नहीं थे, तो वो जो गंदे टॉयलेट आज भी गंदे होते हैं, और उस टाइम कुछ ज़्यादा ही गंदे थे। पब्लिक टॉयलेट पूरी कम्युनिटी वहीं जा रही है और कोई सोर्स नहीं है, तो वो एक मेमोरी दिमाग में रह गई। और फिर उसके बाद हम लखनऊ मूव हो गए थे, 3 साल का ही था मैं, तो इतनी छोटी उम्र की मेमोरीज अगर दिमाग में रह जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी वो एक तरीके से भयानक होगी। और लखनऊ की बात करें तो अच्छा सा शहर था, छोटा सा शहर था, बहुत ज़्यादा नीड्स नहीं थी घर में। घर का खाना खाते थे, बाहर का खाना नहीं होता था, कोई कूलर एसी तो होते नहीं थे, तो पंखे की हवा और बिस्तरे पे गर्मियों में वो ठंडा पानी डाल के अपने को ठंडा रखना, रात को छत पे सोना, आसमान पे तारों की छाँव में। लेकिन एक बात मुझे और दूसरी याद है कि मैं छोटा था, घर में मेरे सबसे बड़े ब्रदर और 2 सिस्टर सब स्कूल में पढ़ते थे। डैड वॉज ओनली अर्निंग मेंबर, तो मुझे किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते थे कि एक अच्छी, हर माँ बाप का सपना होता है कि अच्छी एजुकेशन दे। तो सेंट कैथेड्रल करके एक स्कूल था लखनऊ का, अब भी है, बड़ा फेमस स्कूल है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे डाला। मैं 2 या 3 महीने गया होगा, फिर वो मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर पाए और मुझे वहाँ से निकल के फिर एक सिंधी स्कूल में, जो कि चैरिटेबल सोसाइटी थी वहाँ की सिंधी, मेरे डैड जनरल सेक्रेटरी थे, उसमें डाल दिया गया, जहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत पुअर थे। मैं 2nd क्लास में फेल भी हुआ। आज भी मेरे पास रिपोर्ट कार्ड है जिसमें, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी थे मेरे डैड, तो थोड़ा इन्फ्लुएंस था, और वो रबड़ से, क्योंकि वाइटनर तो होते नहीं थे, रबड़ से मिटा के फेल को प्रमोटेड किया गया है। तो मैं आई गॉट प्रमोटेड इन क्लास 2। टीचर मारते बहुत थे, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं था, इंग्लिश का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। अच्छी कुटाई लगती थी हर बात के ऊपर, और टीचर कहते थे कि तुम बड़े डम हो, क्योंकि शाही सा था मैं, पता नहीं क्यों शुरू में बहुत इंट्रोवर्ट था, तो उस वजह से चुपचाप ही क्लास में बैठे रहना, और ज़्यादा पढ़ाई में मेरा मन लगता नहीं था, तो इसलिए अक्सर बहुत मार खाते थे टीचर्स की और कहते थे तुम डम स्टूडेंट हो। और फिर उसके बाद दिल्ली में आए 1971 में, तो 71 में भी यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में गए, रजौरी गार्डन, वेस्ट दिल्ली। वहाँ भी वही स्टैंडर्ड था, मार कुटाई बहुत थी, टीचर्स की बहुत कुटाई पड़ती थी, तो इंग्लिश का एक कॉम्प्लेक्स रहा हमेशा। तो ये कुछ बचपन की मेमोरीज हैं। Sir, you were labeled as a dumb student and had a major complex of speaking English. So how did you overcome that fear? बहुत टाइम लगा मुझे ये इंग्लिश के कॉम्प्लेक्स से निकलने के लिए, क्योंकि कॉलेज तक हिंदी में हुई एजुकेशन, फिर जॉब भी ऐसी लो पेइंग थी, 300 रुपये की जॉब थी, और बिजनेस शुरू किया तो एक्सपोर्ट में थे, और बहुत डर लगता था। उसकी वजह से मैं इंट्रोवर्ट भी होता चला गया, कोई बोलता था तो मैं श्रिंक हो जाता था डर के मारे के, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो थोड़ा बहुत ये हुआ कि अंग्रेज़ी पिक्चरें देखनी शुरू की, और जब अपना बिजनेस शुरू किया तो यूरोपियन और अमेरिकन के साथ डील किया, ट्रैवल किया, तो एक ऐसा कुछ सीखना नहीं पड़ा, एनवायरनमेंट बदल गया हम लोगों के बीच में रहने से, ट्रैवल करने से। बहुत टाइम अमेरिका रहे, बहुत टाइम ट्रैवल किया, उस एनवायरनमेंट में रहने से इंग्लिश इंप्रूव होती चली गई। मूवीज़ देखी, अखबार पढ़ी, तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी, बस धीरे धीरे 8-10 साल में कॉम्प्लेक्स भी निकल गया, बिजनेस बड़ा सा हो गया। फिर जिनकी इंग्लिश से डर लगता था, अमेरिकन और यूरोपियन को, उनको हमने अपने पास नौकरी पे भी रखा, तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, और इंग्लिश भी इम्प्रूव होती चली गई विद द मूवीज एंड द ट्रैवल एंड चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट, उन लोगों के साथ मिलते जुलते रहने से हम। Sir, in one of your TEDx videos, you discussed how a fire broke out in your factory. How did you deal with that situation? तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, और उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ कि हम पेरिस एक फेयर में गए थे। बहुत सारे ऑर्डर्स मिले, बहुत सारा एडवांस मिला, बहुत अच्छे पसंद किए गए हमारे सैंपल्स को। क्रिसमस का मर्चेंडाइज था, पार्टी वेयर था, बहुत मेहनत करके तैयार हुआ सब कुछ। और यही दिन होंगे दिवाली से कुछ दिन पहले फैक्ट्री में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और बड़ी सी आग लग गई, कुछ थोड़े से वर्कर भी जल गए। तो सारा कुछ एकदम, जितना कुछ तैयार था एकदम पूरा काला काला होकर जल के, पूरी फैक्ट्री एक तरीके से बिल्कुल काली हो गई, और बहुत सारा कुछ गड़बड़ होने के चांस थे कि थैंक गॉड कोई वर्कर की डेथ नहीं हुई, नहीं तो शायद मुझे जेल जाना पड़ता। लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ कि सुबह जब हम फैक्ट्री में आए तो एक बार घबरा गए बहुत,
वहाँ पे एक लीडरशिप लेसन ये है कि आप वो घबराहट स्टाफ को देखनी नहीं चाहिए। घर पे आके थोड़ा सा रोना भी छूटा, कुछ लगा कि ये क्या हो गया, एकदम से सब कुछ जल गया, ख़त्म हो गया। लेकिन वहाँ पर हमने थोड़ा सा बोल्ड फेस टीम को ये दिखाया कि हमें 3 दिन में फैक्ट्री तैयार करनी है वापस। पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे आग लगी है या नहीं लगी है। तो वो हमने फटाफट इंश्योरेंस वाले बुलाया, उन्होंने सर्वे किया, उसके बाद फोटो वोटो खींचे, सफाई कराई, सफाई करा के फिर वाइट वॉश वाले को बुलाया, बोला इसको रातों रात ठीक करो। इलेक्ट्रीशियन को बुलाया कि रीवायर करो सारी चीज़। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके लगे रहे कि पूरा था सब कुछ ठीक कर लें उसको। और 3 दिन में हम नहीं कर पाया हालांकि, लेकिन 5 दिन में कर लिया। 5 दिन के बाद ऐसा कुछ नहीं था। और लर्निंग सबसे बड़ी यहाँ से कि एक तो घबराहट नहीं एज ए लीडर, दूसरा कूल माइंड से सॉल्यूशन सोचा। एंड ऑफ द डे विद इन 3 मंथ हमें कुछ बायर्स ने एक्सटेंशन भी दे दिया, उनको अखबार की कटिंग भेजी, फैक्ट्री में आग लगी, कुछ ने ऑर्डर्स की एक्सटेंशन भी दे दी, दोबारा से उनको माल बना के दिया और इंश्योरेंस से पूरा क्लेम मिला। तो हम 0 लॉस से उसमें से वापस आए निकल के। और यही अगर सिचुएशन किसी कमज़ोर दिल वाले के पास होती तो वो घबरा के शायद सोचता सब कुछ ख़त्म हो गया और ठीक डिसीजन नहीं ले पाता। तो सारे एपिसोड से लर्निंग ये है कि कितनी भी खराब से खराब सिचुएशन हो, देयर इज ऑलवेज ए वे, देयर इज ऑलवेज ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो उतना नुकसान नहीं होता जितना हम अपने मन में बना लेते कि हाय सब कुछ जल गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो वी केम आउट ऑफ दैट एपिसोड विद 0 लॉस। Somehow lost most of your clients in 2001. So could you tell us why that happened and how did you manage to set all of it? न्यूयॉर्क में थे 9/11 जब हुआ उस टाइम पे, और 2 बड़े क्लाइंट हमारे एकदम से बैंक्रप्सी में चले गए। तो अगर रुपए टर्म में बात करें तो कोई 22 करोड़ का हमें नुकसान हुआ उस टाइम। और उन दिनों को ये बिजनेस कोच मेंटर तो होते नहीं थे और जल्दी से घबराहट हो गई कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया, हम लोगों को पैसे कैसे देंगे, इतने सारे सप्लायर्स थे, क्रेडिटर्स थे। तो हमने फटाफट अपनी फैक्ट्री बेची, लोगों को निपटाया। उसके बाद बड़ा सा हमारा बंगला था रजौरी गार्डन में, उसको बेचा, बैंक को निपटाया कि लाइफ को अभी दोबारा शुरू करेंगे। तो दोबारा हमने फिर वापस एक फैक्ट्री किराए पे ली, जब मैंने आग वाली बात बताई वो उसके बाद में हुई जाके। लेकिन उस टाइम में घबराहट हुई और फिर भी हमने दोबारा से रीबिल्ड किया लाइफ को और दोबारा से काम को शुरू किया, एक किराए की जगह लेके, किराए का अपना मकान लेके, और उस बिज़नेस को हमने कैरी ऑन किया टिल 2006-07 तक हमने उसको चलाया। सर, आप इतने लोगों को मेंटर करते हैं, इतने बिजनेसेस को आपने ग्रो किया है, so tell me who is that one person you go to for an advice and like what is that one advice that has changed your life entirely? ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि कोई एडवाइस मैं किसी के पास जाता था। हालांकि अभी मैंने जब कोचिंग और सर्टिफिकेशन लिया कोचिंग का, ट्रेनिंग का, तो उसमें मेरे मेंटर रहे, बट दैट वाज मोस्टली रिलेटेड टू व्हाट आई एम डूइंग बिजनेस कोचिंग। अदरवाइज मेरा जो साथ दिया, जो मेरी मेजर लर्निंग आई, जो मुझे इंस्पिरेशन मिली, वो मुझे मेरी किताबों से मिली। एक किताब का मैं पर्टिकुलरली नाम लूँगा, टफ टाइम्स नेवर लास्ट टफ पीपल डू, रॉबर्ट शिलर की किताब है। तो वो जब भी मैं फंस जाता था ज़िंदगी में, कहीं भी बड़ा नुकसान हो जाए, कोई ऐसा लगे कि वॉल आ गई है, उससे आगे कैसे जाएंगे, तो उस किताब ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और एक और हमारे मेंटर और कोच थे जिनसे मैंने पॉजिटिविटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर सीखा, उज्ज्वल लुके थे बॉम्बे से, उनकी मैंने काफ़ी वर्कशॉप अटेंड की। तो जो मैं आज अगर पॉजिटिविटी और हाई एनर्जी जोन में रहता हूँ, वन ऑफ द रीज़न इज़ उज्ज्वल साहब। तो एक वो किताब हो गई। दूसरी किताब मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वो भी उसने भी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा रोल मेरी पर्सनैलिटी को शेप करने में किया। और तीसरी किताब जो बाइबल है हम सबके लिए, डेल कार्नेगी की, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो ये 3 किताबों का मैं ज़रूर नाम लूँगा, जो हमेशा मैं कई बार पढ़ता रहा, तो उसमें ज़िंदगी की एक अलग से पर्सनैलिटी निकल के आई, एक अलग से शेप बनी। So what's your daily routine like? Like do you schedule everything? Do you schedule your day ahead or like you just go according, like just go with the flow? मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट है। हालांकि आई एम नॉट ए अर्ली राइजर, मैं आराम से 10-11 बजे उठता हूँ। मैं किताब भी लिख रहा हूँ 10 AM क्लब, क्योंकि मुझे वो 9 AM क्लब जो बुक है उसके साथ बहुत बड़ा मेरा झगड़ा है, क्योंकि मैं रात को काम करता हूँ, मोर प्रोडक्टिव, आई वर्क टिल 2-3 AM। तो मेरा रूटीन हमेशा प्लान रहता है, वर्क स्ट्रिक्टली बाय द कैलेंडर। आपसे भी आज का अपॉइंटमेंट
मेरा फिक्स था सैटरडे के लिए कि 1 बजे के बाद मिलेंगे। तो बिल्कुल प्लान होता है, मैं रात को देख के सोता हूँ कल किस किस से अपॉइंटमेंट है, किस किस से मिलना है। तो टोटली स्केड्यूल रहता है, मेरी टू डू लिस्ट बड़ी परफेक्ट रहती है। मुझे जो काम अकम्प्लिश करने होते हैं वो बड़ी लिस्ट में से मैं चुन के 5 या 10 काम दिन में रखता हूँ जो मुझे अकम्प्लिश करने हैं, ताकि जब मैं रात को सोने के लिए जाऊँ तो आई फील वेरी अकम्प्लिश कि मैंने जो काम आज टू डू लिस्ट पे प्रायोरिटी के लिखे वो हो गए। तो आई रिटर्न ऑल माई कॉल्स सेम डे, दैट इज़ वन थिंग। जो भी कॉल्स आई हैं वो आज रात को वापस कॉल बैक होएगा, अगर लेट आई हैं तो सुबह कॉल बैक होएगा। और सारे मैसेजेस चाहे वो व्हाट्सएप पे आए, लिंक्डइन पे आए, फेसबुक पे आए, ईमेल में आए, टू बी रिप्लाइड सेम डे। So you have written 3 books in so little time. So what was the motivation behind it and what kept you going? Like, I have to write this book, I have to finish this book as soon as possible. थैंक यू, ग्रेट क्वेश्चन। मैं जब अपने सेशन करता हूँ बिजनेस कोचिंग के, मेरे कुछ ट्रेनिंग हैं, 6 सैटरडेज की हैं, साल की ट्रेनिंग है, तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट मैं हर बिजनेस ओनर को कहता हूँ कि आपको किताब लिखनी चाहिए। तो हर बैच में मैं उनको सिखाता हूँ कि आप बुक कैसे लिखें, कितनी जल्दी आप सिर्फ 500 वर्ड रोज लिखें और आपकी 1 महीने में 1.5 महीने में किताब तैयार हो जाएगी। तो वो बैच को जब मैं इंस्पायर करता हूँ किताब लिखने के लिए, तो मैं भी उनके साथ साथ लिखता हूँ। तो जब वो लिख लेते हैं मेरी भी एक बुक कंप्लीट हो जाती है और डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर। तो मेरा टारगेट अराउंड हर 45 डेज में एक बैच खत्म होता है मेरा, और 45 डेज में एक बुक लिखनी है मुझे। तो इस तरीके से मैंने 3 किताबें खत्म कर चुका हूँ। चौथी मेरी आ रही है 3x बिजनेस एंड प्रॉफिट्स के ऊपर आ रही है, उसके बाद 10 AM क्लब। तो ऑल लाइंड अप ऑन नेटवर्किंग, डिफरेंट सब्जेक्ट। आई प्लान टू डू अराउंड 7 to 8 बुक्स इन अ ईयर, एंड नेक्स्ट 3 साल में मुझे 24-25 किताबें करनी है। So in your book, Closing the Sales, you talked about neuro-linguistic programming that can help people close the sales. So have you been implementing this technique in your professional life as well? मैंने जो भी लिखा है और जो भी सिखाता हूँ सारा कुछ मेरा इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और वो खुद करता हूँ तो ही सिखा पाता हूँ, नहीं तो कन्विक्शन नहीं आती। Exactly. वो बुकिश कोचेस तो बहुत है बाजार में, बहुत से लोग सिखा रहे हैं, लेकिन जब तजुर्बे से आप बोलते हैं और खुद करके सिखाते हैं तो एक अलग से कन्विक्शन आती है, एक अलग से उसका इम्पैक्ट होता है, लोग सीख पाते बेटर। So from having the complex of speaking English to actually writing a book, owning the stage, how has your overall experience been so far? Like, I see your videos and like on stage videos, and you are so energetic and so full of life. Like it also, and you are actually motivating the audience. How is your overall experience? देखो, एक तो बचपन की वो माँ कि यू आर द डम्बेस्ट स्टूडेंट, इंग्लिश नहीं आना, तो एक अंदर का एंगर, वो गुस्सा निकलेगा कहाँ? तो वो निकला कि मैं किताब लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा और ऑन द स्टेज लिखूंगा, ताकि वो जो बचपन का फियर था, इंग्लिश का कॉम्प्लेक्स था, वो सारा इस किताब में मैंने निकाल दिया कि लोगों को इससे ना गुजरना पड़े कि स्टेज का डर है, इंग्लिश नहीं आती है, हम हिंदी में अच्छा नहीं बोल सकते। और बाकी का रोल मेरे ट्रेनर्स के, अच्छी मैंने ट्रेनिंग की, बहुत वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग की, ट्रेन द ट्रेनर। तो ऑडियंस को कैसे इंगेज रखना है, कैसे एनर्जी बना कर रखनी पूरा दिन, 8 घंटे 10 घंटे, वो सब उन ट्रेनिंग्स की वजह से काफ़ी कुछ मैंने सीखा। वैसे भी मैं हाई एनर्जी और पॉजिटिव जोन में रहता हूँ, पर ट्रेनिंग्स ने काफ़ी उसको पॉलिश किया, और वहाँ से आप देखेंगे कि हम लोग स्टेज के ऊपर कैसे 8-10 घंटे लोगों को हाई एनर्जी में रखते हैं, इंगेज रखते हैं, ताकि वो बोर नहीं हो और हमारे साथ जुड़े रहें। So tell us something about Tajurba and how is it helping businesses grow? तजुर्बा एक कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है, एसएमईज और स्टार्टअप्स का एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो नेटवर्किंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूल और कॉलेज में किसी को सिखाया नहीं जाता। हम अक्सर सुनते हैं आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन, देयर इज नो सेल्फ मेड पर्सन इन। कहीं ना कहीं हमें ज़िंदगी में किधर न किधर सपोर्ट किसी की मिलती है, और उस सपोर्ट से हमें एक पुश मिलता है, चाहे वो हमारा क्लाइंट हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, दोस्त हो, और उस रिलेशनशिप में हमने इन्वेस्ट किया होता है, इस वजह से हमें वो सपोर्ट टाइम पे मिलती है। तो इस इकोसिस्टम में जब तजुर्बा की जो कम्युनिटी है, वहाँ पर जब एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, तो वो एक दूसरे को अपने अपने बिजनेस में रेफर करते हैं। जैसे मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आप एक डेंटिस्ट हैं, तो मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं अच्छे डेंटिस्ट को जानता हूँ, आप बताएंगे मैं एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानता हूँ। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक दूसरे को रेफर करें, एक दूसरे की मदद करें बिजनेस में, और अपनी जो नीड है वो भी इसी कम्युनिटी से पूरी हो। तो कम्युनिटी कॉमर्स एक ई कॉमर्स से ज़्यादा कुछ बड़ा होने वाला है। ई कॉमर्स में तो हम कुछ अमेजोन से या इंडिया मार्ट से कुछ भी किसी से लेते हैं तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन यहाँ अगर हम एक ही कम्युनिटी के पार्ट हैं ऑल इंडिया में,
हम एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से अपनी भी ज़रूरतें पूरी करते हैं, जो हमें वेंडर चाहिए या हमें कुछ बेचना है, दोनों चीज़ें वहीं पूरी हो जाएंगी। और फिर हम अपने अपने नेटवर्क से भी लोगों की मदद करेंगे। तो ये एक सारा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम एक तजुर्बा ऐप के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बैकअप कर रहे हैं कि अगर कोई बैंगलोर के मेंबर को कोई सर्विस चाहिए और उसे दिल्ली में सर्विस चाहिए तो वो उसको उस कीवर्ड से मैच हो जाए, वहाँ पर इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए कि बैंगलोर में कोई आपकी सर्विसेज ढूंढ रहा है। तो ये अभी इंडिया में कोई भी नहीं लाया, मेरे ख्याल दुनिया में भी कोई नहीं है जो ये कॉन्सेप्ट करे कि आपको आपकी लीड्स कम्युनिटी से बैठे बैठे जहाँ भी जिस शहर में जिस लोकेशन में है वो आपको मिले। So what message and advice would you want to give to today's generation and entrepreneurs and anyone who's looking to start their own business? देखो, बिजनेस के लिए दो तीन चीज़ें होती हैं। पहली बात तो डू व्हाट यू लव। अगर वो नहीं पता है तो लव व्हाट एवर यू आर डूइंग। कहीं कोई मिसमैच हो जाता है, लोग को जिंदगी किसी से पूछो क्या हालत कट रही है, कटनी नहीं चाहिए यार। सुबह उठो, ऐसे उठो कि आज का दिन तो बस बेस्ट दिन गुजरने वाला है, तो वो एक फीलिंग के साथ उठो। वो एक नेचुरल वे में आएगी कि जब आप जो कर रहे हैं वट एवर यू आर डूइंग बिकॉज यू लव इट। अदरवाइज अगर जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको अपनी यू गॉट टू लव इट। अगर आप उसको पैशन के साथ करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। ऊपरी मन से अगर आप कुछ भी करेंगे ना कि ये एक जॉब है या बिजनेस है, मेरा मन नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं है, क्लाइंट अच्छे नहीं, तो उसके कुछ रिजल्ट नहीं मिलते। तो पहली बात है कि डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू, लेकिन उसमें पूरी शिद्दत से करें, मेहनत से करें, पैशन के साथ करें, गोल सेटिंग को सीखें। क्योंकि बगैर गोल्स के अगर शिप एक निकलता है बगैर डेस्टिनेशन के तो क्रैश है। कैप्टन को पता है यहाँ जाना है, आपको अगर अपना गोल पता है मुझे 3 साल में 5 साल में इतना कमाना है, इतना बड़ा बिजनेस करना है, और उसमें पूरी जान लगा दें, उसमें एक्शन पॉइंट बनाएं, रोज कुछ ना कुछ एक्शन करें उसकी तरफ। गोल चेंज नहीं होगा, एक्शन चेंज होता है। तो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है, पैशन बहुत जरूरी है, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। दिस इज द मैसेज फॉर एंटरप्रेन्योर्स टुडे। So how has the pandemic been treating you? Did it affect your business? Did you learn something new? Like, share all your experiences during this phase. Pandemic has been such a great opportunity for me. क्या है, पहले हम लोग करते थे कि स्टेज पे जाते थे, होटल बुक करते थे, एमजी देते थे, 2 लाख दो, 3 लाख दो, इतने लोगों का दो, फिर एक रिस्क लेके चलते थे, उतने लोग आए वहाँ पर, और अच्छा खासा हमने एडवांस दिया भी हुआ था। हमारे प्रोग्राम लाइंड अप थे, पैंडेमिक हुआ, हमें लगा एकदम से सब बंद हो गया। लेकिन जैसे हमेशा मेरा रहा है कि सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच विद पॉजिटिव सोचना है कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, दिमाग में सोचना शुरू किया तो देखा कि बाकी सब लोग जूम पे करने लग गए हैं अपनी ट्रेनिंग को, तो हमने भी जूम को सीखा, टेक्नोलॉजी को अडाप्ट किया। और वहाँ से एक बड़ा चमत्कार ये हुआ कि पहले हम दिल्ली एनसीआर में लिमिटेड थे, अभी ऑल ओवर वर्ल्ड खुल गया हमारे लिए। पूरे इंडिया से, दुनिया से अराउंड 1000 से ऊपर लोगों को मैंने ट्रेन किया है। तो इनकम भी बढ़ी, इन्फ्लुएंस भी बढ़ा काफ़ी सारा, और बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई। और अब ये तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी। मुझे लगता है जब पैंडेमिक जाएगा तो स्टेज पे जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। दिस इज सो कॉस्ट इफेक्टिव, हर एक के लिए, हमारे लिए भी कन्वीनियंट है, घर की बेसमेंट से काम करते हैं 2 घंटा, और लोगों के लिए भी कन्वीनियंट, होटल के खर्चे बचते हैं, आना जाना बचता है, महंगा नहीं पड़ रहा। तो सारी ट्रेनिंग यहाँ चल रही है, इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो बहुत सारी जो मैंने सीखा है कि दुनिया में जितने डिजास्टर होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी होती है। वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनियर मैंने पढ़ा रहा, जॉन डी रॉकफेलर, दुनिया के पहले ऑफिशियल बिलियनियर थे। उनका कहना यह है कि मैंने हर डिजास्टर में अपॉर्चुनिटी देख के ज़िंदगी में मैं बना हूँ। और 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, सबसे ज़्यादा दौलत उन्होंने उसमें ही कमाई, वो बिलियनियर उसी दौरान में बने। तो इस तरीके के जो भी सिचुएशन चेंज होती है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़रूर छुपी होती है। हमें उससे हारने के बजाय या डिप्रेस होने के बजाय थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पिवट करें। अगर अपना बिजनेस अभी हट हुआ है तो कुछ नया निकल के आ सकता है, उस नज़रिए से देखेंगे तो पैंडेमिक इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। What was your initial thought when you first started your YouTube channel, and are you active on it currently? यूट्यूब पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, हालांकि लेट हो गया मैं काफ़ी, बहुत लोगों ने बहुत कुछ वहाँ से दे हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स। मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ उस पर। 1 साल हो गया तकरीबन मुझे यूट्यूब किए हुए, और इस पैंडेमिक में मैंने चलाया कि मैं डेली लाइव जाऊँगा। तो मेरा एक डेली 9:30 बजे रात को लाइव शो होता है। 110 एपिसोड हो चुके हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक मैं लर्निंग को लेके कवर करता हूँ, और Q&A होता है एंटरप्रेन्योर्स के साथ। तो होल आइडिया है इसके
इंडिया के कोने कोने तक रीच पहुंचे। अब हर कोई तो मेरा जूम नहीं अटेंड कर पाता, हर तक वेबिनार नहीं, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि एक्टिव हैं, एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो कर चुके हैं। तो ये मैसेज मेरा जो हर रोज़ एक सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी, लीडरशिप के ऊपर कुछ ना कुछ एक 30 मिनट का मेरा सेशन होता है, उसमें मैं इंटरव्यूज भी करता हूँ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के, उनकी भी लर्निंग लेता हूँ। सो द होल आइडिया इज टू रीच एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। So are you currently involved with any charity work? जी हाँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। एक फाउंडेशन है, ट्रस्ट है रजौरी गार्डन में, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, एक ओल्ड एज होम है, उसका नाम है माई कमलीवाली जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, MKW बोलते हैं शॉर्ट में। तो उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ काफ़ी कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है। वो हॉस्पिटल बनने में भी मेरा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था, ओल्ड एज होम में अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो काफ़ी समाज के लिए वहाँ पे हम लोग काम करते रहते हैं। What kind of people do you usually like spending time with? एक्चुअली मेरा टाइम तो एंटरप्रेन्योर्स के साथ ही गुजरता है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, एक बड़ा सा तजुर्बा परिवार बन गया है। तो यही एक फैमिली बन गई। अब अपनी फैमिली से तो इतना भाई बहनों से टाइम नहीं मिलता, लेकिन तजुर्बा के जो ऑल इंडिया में इतने हज़ारों मेंबर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनके साथ ही कोई ना कोई दिन भर जूम पे सेशन चलते हैं, कोचिंग सेशन चलते हैं, ट्रेनिंग चलती है, 1-to-1 चलती हैं। कभी कभी लोग लंच पे, डिनर पे भी नेटवर्क से ही आते हैं। सो तजुर्बा इज माई फैमिली। So what do you do for entertainment? एंटरटेनमेंट के लिए एक तो संडे मेरी छुट्टी होती है, तो संडे को मैं और मेरी वाइफ एक मूवी जरूर देखते हैं, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो। तो दैट इज़ वन एंटरटेनमेंट। दैन म्यूज़िक का मुझे बहुत शौक है। तो मैं जब सुबह चाय पी रहा होता हूँ और जब तक शावर लेता हूँ, तो अच्छे खासे रोमांटिक गाने चलते हैं मेरे। वो सारे गामा कारवां करके इंस्ट्रूमेंट है, उसमें प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग बच्चों ने गिफ्ट किया था। तो गाने चलते रहते हैं, ऐसे संडे भी सुबह से ही गाने चलते रहते हैं। तो फाउंड ऑफ म्यूज़िक। बाकी टाइम मिलता है तो आप किताबें देख रहे हैं, मेरे पास हज़ारों किताबें हैं, किंडल पे भी हैं, फिजिकल भी है। मैं फिजिकल नहीं लेता, जगह नहीं बनती रखने की, तो किंडल लेता हूँ। तो कुछ ना कुछ डेली एक चैप्टर किसी बुक का पढ़ता हूँ मैं। तो ऐसे ही मेरी दिनचर्या रहती है। एंटरटेनमेंट का सवाल है तो मूवी और म्यूज़िक, और खाने से आजकल परहेज है, तो इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा उसमें वैरायटी नहीं मिल रही। मैं डाइट के हिसाब से चल रहा हूँ, बट अदरवाइज आई लव फूड टू। Okay, actually my follow-up question was that are you a foodie and like what is your favorite dish or dessert? मेरी फेवरेट डिश है मटन कोरमा, मटन बिरयानी एंड काकोरी कबाब। So tell me something about your weight loss journey and the journey of writing a book about it. एक बड़ी सफरिंग थी, 105 किलो, 110 किलो जो वजन बढ़ा था, 30 साल पीछा नहीं छोड़ रहा था, बहुत सारे फेलियर्स हो रहे थे। तो ये लॉकडाउन ने एक ये भी अपॉर्चुनिटी दी, और मैं काफ़ी टाइम से अफर्मेशंस कर रहा था कि मेरा 75 किलो वजन है, मुझे 100 साल जीना है। बहुत कुछ ऐसा मैं लिख के गोल लिख रहा था, डेली पढ़ रहा था। तो उससे मैंने ज़िंदगी में कुछ अट्रैक्ट किए लोग, और मुझे चेन्नई से एक कंसल्टेंट मिले जिन्होंने गाइड किया। तो लॉकडाउन में अपॉर्चुनिटी आ गई, बाहर जाना, पार्टियां भी बंद हो गई, तो मैंने कहा अभी कर लेते हैं। तो 90 दिन लग के मैंने जीरो चीटिंग के साथ, बड़े डिसिप्लिन के साथ अपनी डाइट फॉलो की, डायबिटीज रिवर्सल की। अब मैंने कहा अब इतना कुछ हो गया, लोग इंस्पायर हो गए। जब मैंने सोशल मीडिया पोस्ट किया तो मैंने कहा ये नॉलेज भी शेयर करते हैं। तो मैंने ये बुक भी उस पर लिख डाली कि हाउ टू लूज वेट इन 90 डेज एंड रिवर्स योर डायबिटीज एट द एज ऑफ 62। तो अच्छी सी मैंने इसके ऊपर भी पूरी जर्नी अपनी किताब में कि मैंने क्या क्या किया ये भी लिख दिया। और उसके पहले जैसे मैंने आपको बताया 2 किताबें मैंने और लिखी। जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की तो ऑन द स्टेज मैंने एक बुक लिखी। फिर क्लोजिंग योर सेल्स का लोगों का बहुत चैलेंज है, तो क्लोजिंग योर सेल्स लिखी। दीज आर द 3 बुक्स। So here is my wonderful wife Uma Mancharavani. We were married for 37 years. In fact, just 3 days ago on the 28th October we celebrated our 37th wedding anniversary. Over to you. Hi everyone. As introduced by my wonderful husband of 37 years, Uma Mancharamani, co-founder of Tajurba, partner in all crimes. So we have always been working together, struggling together, succeeding together. All our ups and downs have been together for past 37 years. तो हम लोग जो भी करते हैं साथ में करते हैं। कोचिंग, ट्रेनिंग, हमने अगर ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेशन लिया तो साथ में लिया। तजुर्बा में हम लोग मिल के काम करते हैं। तो जैसे मैं ट्रेनिंग का पार्ट अगर मैं हैंडल करता हूँ तो पूरा तजुर्बा को ये इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रही है। ऑल इंडिया में चैप्टर्स लॉन्च, तो बहुत सारा काम उसमें होता है। बाकी फैमिली की बात करें तो वी हैव 2 सन्स।
एक मैरिड है, एक डॉटर इन लॉ है, सब साथ में रहते हैं। एक अच्छा प्यारा सा पेट है हमारा डॉग, उसका नाम बस्टर है, इज ए ब्लैक लेब्राडोर। तो वी हैव अ ग्रेट टाइम। हमारे यहाँ पे टाटा स्काई नहीं है, हम लोग टीवी नहीं देखते हैं, तो एज ए फैमिली हम काफ़ी टाइम खाने पीने में कभी अच्छा खाना बनाते हैं, बातचीत में, सुबह रात को डिनर पे अक्सर ऐसा टाइम गुजरता है। हम लोग वी लाइक टू टॉक ए लॉट, सब कोई अपनी अपनी शेयरिंग में, अपनी करता हूँ, ये अपनी करती हूँ, तो लाइफ गोज ऑन और बड़े अच्छे से ज़िंदगी कट रही। बच्चों का अपना काम है, जो ई कॉमर्स, उनका एक ब्रांड है नेचर्स एब्सोल्यूट्स.com के नाम से, नेचर्स एब्सोल्यूट्स, अपना ई कॉमर्स है, वेबसाइट पे, अमेजोन पे अच्छा सा ब्रांड है। तो दे आर बिजी विद देयर ओन वर्क, गाइडेंस के लिए हम लोग उनके साथ हैं ही हमेशा। तो वंस ए वीक उनके साथ मीटिंग होती है, जहाँ पे हम लोग उनके बिजनेस के बारे में सारी गाइडेंस देते हैं। बाकी हम लोग तो साथ साथ हैं ही, वी डू सुबह से रात तक, हमारा तो तजुर्बा और ट्रेनिंग इसी में ही दिन कट जाता है। So we keep training each other and sharing our tajrba with each other to excel, so that we both can gain with our individual perspectives and how we transform and then present it to the world, so that they get benefited. All our members, our business owners, his coaching clients, trainees. So we do many things together and we share. Obviously, we have so many shared experiences because we have been working together all this while. So all that we have gone through is been together. So we share a lot of things together as yet, and we do respect each other's perspective, and then how it can help, having two perspectives, looking at same thing, how we can find a solution for our clients. तो दोस्तों, ये थी मेरी लाइफ लीला, जीवन लीला। अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो lifeleela.in, और ई बुक के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो lifeleela.in पे आपको डाउनलोडेबल ई बुक भी मिल जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय लाइफ, अमेजिंग जर्नी आई हैव शेयर्ड विद यू गाइस ऑल, एंड ऑल दिस फोटोग्राफ्स यू सी, माय अवार्ड्स, माय अचीवमेंट्स इन लाइफ, यही कुछ सारा कमाया है मैंने, बिसाइड व्हाटएवर सक्सेसेस आई हैव अचीव्ड।